को उठाए हर एक जन, बोले परमेश्वर आज मैं आपका थैंक्स करता हूं, आज मेरी गवाही का दिन है। अपने हाथों को उठा, बोले परमेश्वर जितनी गवाहियां मैं सुनूं, जितने आपके वचनों को सुनूं, आज कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे विश्वास को हिलाने ना पाए। बोलो परमेश्वर आपकी मर्जी के मुताबिक आज मैं आपके घर में हूं और मैं आपका थैंक्स करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें इंग्लिश से एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड है खुदावंद की जीवित हजूरी में। तो ये सब जन अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं, टेस्टिमनीज को सुने पूरे ध्यान से, विश्वास के साथ, आत्मा में रहते हुए। खुदावंद के बड़े काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए, ये आपके फेथ को बढ़ाएंगे और आपको समझ आएगी परमेश्वर कैसे और कितने बड़े काम करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो आइए इन टेस्ट सुनेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सतनाम सिंह मेरा नाम, सतनाम सिंह अमृतसर तो। ओके, 6 साल पहले आपके परिवार में किसी ने जादू टोना किया था परिवार के ऊपर। आप बताएं क्या हुआ था, कैसी हालत थी, कैसे सब घर का हाल हो गया था उसके बाद? ब्रदर जी मैं ना मतलब बहुत ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਮਤਲਬ परमेश्वर ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ। जब ये अटैक आपके परिवार के ऊपर होने लगे तो परिवार का क्या माहौल था? आपकी वाइफ, आपके बच्चे? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। आप काम क्या करते थे? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਜੀ। इंजीनियर था। हाँ जी। और इसी वजह से काम भी बंद हो गया या क्या था? ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਕੋਠੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ओके। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ। और इस वजह से बिजनेस हाँ जी। बिल्कुल डाउन हो गया था आपका? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और इसकी वजह से पूरा परिवार जो था वो, और आप शराब भी पीते थे, साथ में नशा करना शुरू किया? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लोगों से पैसे उधार मांग कर ਹਾਂਜੀ नशा करते ਹਾਂਜੀ थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ घर का माहौल टोटली खराब हो चुका था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए पर कहीं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। और कंडीशन डे बाय डे बहुत खराब हो गई परिवार की। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आपको फिर चर्च के बारे में, अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਨੀਂਦਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਨਹੁੰਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਬੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ। ਜਿਉਂ ਇਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਮਰੀਕਾ। हाँ जी। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं?
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੇਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एकदम मरी दी हालत ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। घर में कोई शांति नहीं थी उस समय, कोई शांति नहीं सी ब्रदर। बेटी बीमार थी, घर में जादू टोने के अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक, ऊपर से आपके हस्बैंड का बिजनेस बिल्कुल हाँ जी ब्रदर डाउन हो चुका था। हाँ जी ब्रदर। और कर्जा सिर पे चढ़ गया, घर का सामान गिरवी रख दिया। हाँ जी ब्रदर। फिर ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ 골ਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 4-4 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ कि ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। तो परमेश्वर ने कैसे आपके दुख खत्म किए ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2023 में ਹਾਂਜੀ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਏਂਗੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ, ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮੰਮੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ प्रभु ते बड़ा विश्वास होया। आप खुद बताएं क्या एक्सपीरियंस था जब प्रेयर को रिसीव किया चर्च में आके आपने? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ,
ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं सी। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और जो प्रेयर हुई थी, परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर करी, एक बार उसको हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां इस लहू के लगने से आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ। सब तरह की दुष्ट आत्माएं और रोग आपकी बॉडी को छोड़ें और जाते रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो भाई आप बताएं कि जब प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने आपकी बेटी को आजाद किया उन दुष्ट आत्मा से, जादू टोनों से, आपकी वाइफ को, परिवार को, जी ब्रदर। क्या क्या बदलाव देखा आपने अपने परिवार में चर्च में आने के बाद? हाँ जी ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 20 ਰੁਪਏ ਬੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ठिकाना ना रहा। क्योंकि जब इनके पास कुछ भी नहीं था, आप जब चर्च में आए किराया भी बड़ी मुश्किल से हाँ जी अरेंज ब्रदर, किया, हाँ मतलब जी। जो कुछ भी था आपने प्रभु के घर में बो दिया। हाँ जी, जिस हाँ तरह जी। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब एक औरत यीशु मसीह के पास गई, उस भवन में गई, तो उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी और उसने वो खुदावंद के कामों के लिए वचन को पूरा किया और उसने ऑफरिंग बॉक्स में वहां पे डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसने सबसे बढ़ के बोया। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 दबड़ियां थी, उसने वही बो दिया। ऐसा नहीं कि किसी के पास 10,000 है तो वो 20 डाल रहे हैं, ये छोटी बात है। अगर किसी के पास 10,000 है तो 10 में से वो 99% बो रहा है, तो इसका मतलब ये एक बड़ी चीज है कि उसके पास जितना था उसने उतना बोया। अगर कम था तो कम में से भी बढ़ के बोया, अगर ज्यादा है तो ज्यादा में भी उन्होंने बढ़ के बोया। और उसके बाद खुदावन ने आपके फाइनेंस को सेट किया। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਲੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। और परमेश्वर ने आपको नए घर के साथ भी ब्लेस किया उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। और जो जो सामान गिरवी रखा था, गोल्ड था, कर्जा था, वो सब। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, जोर से तालियों के साथ। ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, 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 ਫਤਿਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जितने जन आप परमेश्वर के भवन में हैं, जब आप अपने बोना जो खुदावन ने आपको दिया आप बंद नहीं करते हैं, तो खुदावंद आपके बोने के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ता है, आपको बीमारियों से आजाद करता है, आपके फाइनेंस को सेट करता है। आज हमारा ये बिलीव है कि जब आज आप बोएंगे खुदावंद के कामों के लिए, आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों को आप लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। और बहुत ही अमेजिंग काम जो खुदावंद ने किए लोगों के जीवन में, और टेस्टिमनीज हुए हैं, वो आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने वाली है। ये एक बहुत ही बड़ी गवाही है, आप जरूर इसको ध्यान से सुने। भाई आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम दविंदर मसीह है। हाँ।
तो कहाँ मेरे पापा का नाम है यीशु मसीह। जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जम्मू से। पिछले 21 साल से आप नशा करते थे। जी जी जी। कौन कौन सा नशा किया आपने? मैं भैया सिगरेट पीता था, चरस पीता था, भांग पीता था और कैप्सूल टिक्कियाँ भी खाता था मैं। और मैं हर एक नशा करता था, मतलब मैं कभी सुधरा नहीं, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर ने सीधा किया और मुझे कोई नहीं सीधा कर सकता। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इक्लेसिया भले। क्योंकि आज नशा करने के लिए पैसा कहाँ से आता था आपके पास? मैं भैया चोरियां भी करता था। चोरियां करते थे, मतलब हाँ, जीवन लोग जी 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 हाँ। पूरा पाप में था आपका? बिल्कुल पाप में था। तो मेरे आज कई विरोधी मुझे कहते हैं कि मतलब बाप चोर, बेटा भी चोर होगा इसका। बाप गंदा, औलाद भी गंदी होगी, लेकिन बाप भी मसीह में है आज और बेटा भी मसीह में है। और मेरा बेटा ही आपको बताएगा कि मैं कैसा इंसान था। आप और ये मुझे एक चीज परमेश्वर ने सीधा किया है। ध्यान से सुने कि जब नशा किसी के जीवन में एंटर होता है तो नशे के कारण सिर्फ वो व्यक्ति की लाइफ इफेक्टेड नहीं होती, बल्कि उनके पूरा परिवार जो है, इस वजह से उनका पूरा परिवार जो है इफेक्टेड होता है। ये भाई ने जब नशा करना शुरू किया, उसके बाद 3-4 बार इनको पुलिस में पकड़ा है, जेल में भी जाना पड़ा। नशा डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। नशा छोड़ने के लिए आपने दवाइयां भी खाई थी हाँ। कि नशा छोड़ दूं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और बहुत बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। जी, जी, डिप्रेशन में थे जी। लगातार। और जब किसी ने चर्च के बारे में बताया और इन्होंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब के द्वारा इनको अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। 12 मई 2024 की मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, उसके दौरान परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आज इस चर्च के ऊपर खुदावन का अभिषेक आ रहा है और जो नशा करते हैं वो छूट रहे हैं। रिलीज करो अनॉइंटिंग को जो नशा करते हैं उनके ऊपर। अगर आप खुद यहाँ मौजूद हैं, अपनी लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग को रिसीव करो। होली गोस्ट रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद से आज 1 साल 8 महीने के करीब हो चुका, आपने कोई नशा नहीं किया। प्रभु ने नशों से आजाद बिल्कुल। किया। और मेरा बेटा बताएगा कि मैं क्या करना कोर्ट केसेस से भी आपको आजाद किया है। इनको परमेश्वर ने नशों से, कोर्ट केस से, बीमारियों से आजाद किया और ये अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर ने इनके फाइनेंस को सेट किया। तो आज जितने जन ऐसे यहाँ पे हैं जो नशे की हालत में हैं, जो नशा करते हैं या बीमारियों के नीचे हैं, जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, आप छुटकारे को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं, आज की गवाहियां आपके लाइफ को चेंज करेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब भी लोग चर्च में आते हैं, वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि जब हम चर्च में एंटर हुए तो हमने गवाहियों को सुना कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए। टेस्टमनी सुनने के बाद आपका फेथ बढ़ता है। आज अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम आए हैं जो नशा करते हैं, ब्रांचेस में है या आप फॉरेन से कहीं से ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा आज वो नशे का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस पाप का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम इसी तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई, ये सिस्टर का नाम सुधा है और ये आज हावड़ा चर्च ब्रांच के साथ ये लाइव जुड़ी है। आज इनकी गवाही हमारे पास आई है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रही हैं। मेरा नाम सुधा साहब, मैं हैदराबाद से गवाही दे रही हूँ। 3 साल पहले से मुझे यूरिन में बहुत प्रॉब्लम होता था, पेट फूल जाता था, यूरिन लीक हो जाता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी, मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, घर से बाहर भी नहीं जा पाती थी। मैं पानी भी पीती थी तो मेरा यूरिन लीक हो जाता था, रात में सोते समय भी यूरिन लीक हो जाता था, बहुत परेशान रहती थी। मैं 2 से 3 बार कपड़े चेंज करती थी। डॉक्टर के पास गई, 3-4 डॉक्टर चेंज किए, बहुत मेडिसिन भी मैंने खाया, लेकिन कोई भी काम नहीं किया, मेडिसिन कोई फायदा नहीं हुआ। हस्बैंड ANM के साथ जुड़े हुए थे और मुझे उन्होंने बताया और मैं भी ऑनलाइन फिर फॉलो करने लगी। 2025 में कोलकाता वर्धमान में जब सेट हुआ, सेट में मैं सारा दिन थी, 10 घंटे थी, वहाँ पर कोई भी यूरिन लीक नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी। आगे आई, अपनी गवाही दी कि 10 घंटे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मेरे पेट पर हाथ रख कर ले हैंड किया
और उस दिन से मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं अच्छे से हूँ, बाहर आती जाती हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया, आपने के गवाही को ध्यान से सुना कि इनका जो यूरिन था वो बार बार लीक होता था, इनको कपड़े चेंज करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में थे। और यह बहन ने अपनी गवाही में बताया कि जब वेस्ट बंगाल में जब वहाँ पे क्रूसेड हुआ था, परमेश्वर के दास वहाँ पे गए थे, उस क्रूसेड में परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया था, वहाँ पे इन्होंने अपनी गवाही को दी थी। तो आइए हम उस गवाही को देखते हैं। हालेलुया। अपॉस्टल 3 साल से इस बहन का जो यूरिन था बीच में लीक हो जाता था, और कल जैसे आपने क्रूसेड में प्रेयर की और कल पूरा एक दिन अपने आप को इन्होंने चेक किया, पूरी तरह से बहन हील हो चुका है अपॉस्टल जी। और आज अपॉस्टल जी सुबह के आज यहाँ पे हैं, सुबह के मीटिंग में है, और एक भी बार कहते मेरा यूरिन लीक नहीं, मैं खुद गई हूँ, पूरी तरह से मुझे प्रभु यीशु मसीह ने हील किया। पापा जी मैं कल मीटिंग देख रही थी, मेरे हस्बैंड ने गवाही अपना दी और मैं बहुत रोई कि मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हो यीशु मसीह, आप बुलाओ, इतनी सामत करो कि मैं इतने घंटे आ सकूं। आज मैं 10 घंटे से हूँ, कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद यीशु। 10 घंटा ধরে বসে আছি, আমার কোনো প্রস্রাবের প্রবলেম হয়নি। धन्यवाद यीशु। लेके आओ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा मसा इस पे उतरे और ये कभी भी सेम ना रहे, इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी भी है। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने ये बहन को उस शर्मिंदगी से इनको परमेश्वर ने आजाद किया, इनको हील किया। उसके बाद ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि आज इनको 1 साल 23 दिन हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको हील किया। सब जन जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए। कलीसिया, आप जानते हैं जैसे परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यह बहन ने अपनी गवाही को उस वेस्ट बंगाल क्रूसेड में दिया। उसके बाद जब ये आगे गए, परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। उसके बाद ये बहन आजाद हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको उस शर्मिंदगी से आजाद किया, इनको छुटकारा दिया। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए सब जन जोर से जोर से। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं, सब जन अपनी जगहों के ऊपर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं और सब जन के आराधना